السلام علیکم جی، اس ٹائم ہم کراچی سے اسلام آباد کا سفر کر رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں میں جس ایئر لائن میں موجود ہوں بالکل عام لوگ جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں اور جس نشست پر میں موجود ہوں یہ اس ایئر لائن کی یا اس جہاز کا بالکل اینڈ ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہاں بالکل اینڈ ہو جاتا ہے اور جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ ذرا دیکھیں میرے ساتھ یہاں کون موجود ہے۔ میرے ساتھ میری پچھلی نشست پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، یہاں منسٹر مینا خان اور پارلیمانی لیڈر شاہد اٹک صاحب موجود ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب یہاں جو ہے وہ اپنا کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وزیر اعلیٰ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں وہ اسپیشل جیٹس کا استعمال کرتے ہیں، وہ محسوس طیاروں میں جاتے ہیں، پاکستان ایئر فورس کے طیارے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ عام پبلک میں موجود ہیں اور بالکل جہاں عام لوگ بیٹھے ہیں وہاں بھی نہیں، اور بالکل اینڈ پہ بیٹھے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہی ہم ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ جیسا میں ہوں، جیسا میں تھا ویسا میں ہوں، ایسا میں رہوں گا۔ اور جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو عوام کا احساس ہی ہوتا ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ صاحب دیکھیں، آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں وہ جس طرح اسپیشل پروٹوکول ہوتے ہیں، ان کے اسپیشل جیٹس ہوتے ہیں، تو آپ ان کو یوز نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں قوم کے ایک ایک روپے کا جو ہے خیال رکھوں گا، اور یہ میں وزیر اعلیٰ کی کرسی اپنے بعد آنے والے ہر بندے کے لیے اتنی مشکل بنا دوں گا نا کہ وہ پھر ہر بندہ جو ہے ان سے اس کی امید رکھے گا انشاءاللہ۔ اور عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم یہی چاہتے تھے اسٹارٹ سے، ہماری جدوجہد ان کے لیے تھی اسٹارٹ سے، اور بس ہمیں خوشی ہوتی ہے اس میں۔ ابھی آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دکھائیں جی ذرا، یہ کیا لکھ رہے ہیں ذرا؟ کل کے لیے جو پریارٹیز ہیں وہ لکھ رہا ہوں اپنے ساتھ۔ کراچی آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر کے جا رہے ہیں، آپ گورننس دیکھیں؟ جی، یہ گورننس کے لحاظ سے جو ہمارے صوبائی ایشوز ہیں اس کو لکھ رہا ہوں، اور کل اس کے مطابق جو اپنے شیڈول بناؤں گا۔ مینا خان صاحب آپ بھی وزیر، ادھر پارلیمانی لیڈر، ادھر وزیر اعلیٰ، یہ کیا ہے؟ بالکل عام پبلک۔ یہی تربیت ہوئی ہے عمران خان نے کہ عمران خان کے دل کے قریب ایک چیز جو ہے نا وہ احساس ہے۔ تو ہم تو عام روٹین میں ایسی جہازوں میں جاتے تھے، تو اب کیا ہوا اگر ہمارے نام کے ساتھ وزیر لگا یا پارلیمانی لیڈر لگا یا وزیر اعلیٰ لگا، اب بھی اسی طرح ہے۔ ہاں، ذمہ داری زیادہ ہے، سرو کرنا ہے گورننس کے حوالے سے بھی اور حقیقی آزادی کے حوالے سے بھی، وہ ذمہ داری ہمارے اوپر بڑی ہے۔ باقی ہم وہی لوگ ہیں، تب بھی وہی تھے، اب بھی وہی ہے۔ اٹک صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں آپ، اور یہاں آپ بالکل عام لوگوں میں موجود ہیں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب نے ان کی خواہش تھی کہ اس ملک کے اندر ہم سادگی لے کے آئیں، اور دوسرا یہ کہ سادگی جو ہے یہ ہمارے پیغمبر رسول کی وہ سنت ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو بھی سرو کریں، پاکستان کو سرو کریں، اور بحیثیت پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں عوام کے مسائل کے اوپر بات کریں، عمران خان صاحب سے بی بی صاحبہ کے حوالے سے ہم بات کریں، اور یہ چیزیں ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی۔ اور آپ کو پتہ ہے میں زیادہ جہاز میں سفر کرتا بھی نہیں، بائی روڈ پریفر کرتا ہوں، اور آج میں جہاز میں جا رہا ہوں۔ آج مطلب یہ کہ پہلی دفعہ نہیں جا رہا، وہ ٹریول کر چکا ہوں، لیکن وہاں سے میں جب آ رہا تھا سندھ کراچی، تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سندھ کے کیا حالات ہے۔ حسین، میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں بائی روڈ وہاں سے، آپ یقین مانیں مجھے سندھ کے عوام کے اوپر رحم آ رہا تھا۔ جب میں سکر انٹر ہوا میں نے وہ روڈ کے حالات دیکھے، اس کے بعد جب کراچی دیکھا، اور میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں آپ کو، پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پارلیمان کے اندر اس پہ میں بات کروں گا۔ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، ہماری جب حکومت تھی، مراد سے جب منسٹر تھی کمیونیکیشن کے، تو ڈی سی کے اکاؤنٹ میں ہماری حکومت کے ٹائم ہم نے پیسے جمع کرائے تھے یہ سکر روڈ کے لیے۔ ان پیسوں کو جو لینڈ ایکوزیشن کے لیے تھے وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جی اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام لوگ موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ اسپیشل طیارہ کیوں نہیں یوز کرتے ہیں؟ نہیں، جب اس میں سفر کر سکتا ہوں تو پھر میں وہ کیوں یوز کروں، اور اس میں خوش ہوتا ہوں عوام کے درمیان۔ اچھا، ہاں جی، دیکھیں جی عوام کے درمیان خوش ہوتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب یہاں کام کر رہے ہیں۔ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ
जा रहे हैं और बिल्कुल आम लोगों के दरमियान मौजूद हैं। और एलीट क्लास के लिए तो ये सोचने वाली बात है, और तमाम सियासी लोगों के लिए, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए सोचने वाली बात है कि एक वज़ीर अगर इस तरह कर सकता है तो अब आपको क्या करना है, और हर इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी क्या है, हर इंसान क्या सोचता है, उसे क्या करना है। तो ये सूरत हाल है। और सिर्फ़ एक वज़ीर आला नहीं बल्कि पार्लिमानी लीडर, बल्कि दूसरे वज़ीर, तमाम लोग जो हैं वो इस टाइम जहाज़ पे सफ़र कर रहे हैं। हम कराची से जा रहे थे तो मैंने सोचा आपको दिखाया जाए, क्योंकि हम तमाम लोग कराची का एक सफ़र करके आए हैं। कराची जो एक जद्दोजहद हुई वो आपको दिखाई। तो अभी कराची से इस्लामाबाद वापसी है, और अभी आप ये जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं। ये सूरत हाल इस टाइम आगे अगर आप देखें, आगे तमाम आम लोग मौजूद हैं। खैर अल्लाह सलामती के साथ ये सफ़र मुकम्मल करे, और आइंदा के लिए भी हमें इसी तरह एक जज्बे के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत दे। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम हम कराची से इस्लामाबाद का सफ़र कर रहे हैं, और अगर आप देखें मैं जिस एयरलाइन में मौजूद हूँ बिल्कुल आम लोग जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, और जिस नशिस्त पर मैं मौजूद हूँ ये इस एयरलाइन की या इस जहाज़ का बिल्कुल एंड है। अगर आप देखें यहाँ बिल्कुल एंड हो जाता है, और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आप ज़रा देखें। मेरे साथ यहाँ कौन मौजूद है? मेरे साथ मेरी पिछली नशिस्त पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, यहाँ मिनिस्टर मीना खान और पार्लिमानी लीडर शाहिद अटक साहब मौजूद हैं, और वज़ीर आला साहब यहाँ जो है वो अपना कुछ काम कर रहे हैं। तो वज़ीर आला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वज़ीर आला साहब, हम देखते हैं कि जो वज़ीर आला होते हैं वो स्पेशल जेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो महसूस त्यारों में जाते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आप आम पब्लिक में मौजूद हैं, और बिल्कुल जहां आम लोग बैठे हैं वहाँ भी नहीं, और बिल्कुल एंड पे बैठे हैं आप। ये क्या कर रहे हैं आप? यही हम हैं, और मैंने कहा था कि जैसा मैं हूँ, जैसा मैं था वैसा मैं हूँ, ऐसा मैं रहूँगा। और जो अवामी मैंडेट के साथ आते हैं तो उनको अवाम का एहसास ही होता है। हम वज़ीर आला साहब देखें, आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि सूबे के जो वज़ीर आला होते हैं वो जिस तरह स्पेशल प्रोटोकॉल होते हैं, उनके स्पेशल जेट्स होते हैं, तो आप उनको यूज़ नहीं करते? देखिए जी, मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला मैं कौम के एक एक रुपए का जो है ख्याल रखूँगा, और ये मैं वज़ीर आला की कुर्सी अपने बाद आने वाले हर बंदे के लिए इतनी मुश्किल बना दूँगा ना कि वो फिर हर बंदा जो है उनसे इसकी उम्मीद रखेगा इंशाल्लाह। और इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हम यही चाहते थे स्टार्ट से, हमारी जद्दोजहद इनके लिए थी स्टार्ट से, और बस हमें खुशी होती है इसमें। अभी आप क्या काम कर रहे हैं? दिखाइए ज़रा, ये क्या लिख रहे हैं ज़रा? कल के लिए जो प्रायोरिटीज़ हैं वो लिख रहा हूँ अपने साथ। कराची आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करके जा रहे हैं, आप गवर्नेंस देखेंगे? जी, ये गवर्नेंस के लिहाज से जो हमारे सूबाई इशूज़ हैं उसको लिख रहा हूँ, और कल इसके मुताबिक जो अपने शेड्यूल बनाऊँगा। मीना खान साहब, आप भी वज़ीर, इधर पार्लिमानी लीडर, इधर वज़ीर आला, ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल आम पब्लिक। यही तरबियत हुई है इमरान खान ने, कि इमरान खान के दिल के करीब एक चीज़ जो है ना वो एहसास है। तो हम तो आम रूटीन में ऐसे ही जहाज़ों में जाते थे, तो अब क्या हुआ अगर हमारे नाम के साथ वज़ीर लगा या पार्लिमानी लीडर लगा या वज़ीर आला लगा, अब भी उसी तरह है। हाँ, जिम्मेदारी ज़्यादा है, सर्व करना है गवर्नेंस के हवाले से भी और हकीकी आज़ादी के हवाले से भी, वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर बड़ी है। बाकी हम वही लोग हैं, तब भी वही थे, अभी वही है। अटक साहब, पार्लिमानी लीडर हैं आप, और यहाँ आप बिल्कुल आम लोगों में मौजूद हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने उनकी ख्वाहिश थी कि इस मुल्क के अंदर हम सादगी लेके आएँ, और दूसरा ये कि सादगी जो है ये हमारे पैगम्बर रसूल की वो सुन्नत है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपने लोग सूबे के लोगों को भी सर्व करें, पाकिस्तान को सर्व करें, और बैसीत पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली में आवाम के मसाइल के ऊपर बात करें, इमरान खान साहब से बीबी साहिबा के हवाले से हम बात करें। और ये चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती, और आपको पता है मैं ज़्यादा जहाज़ में सफ़र करता भी नहीं, बाय रोड प्रेफर करता हूँ, और आज मैं जहाज़ में जा रहा हूँ। आज मतलब ये कि पहली दफ़ा नहीं जा रहा, वो ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ से मैं जब आ रहा था सिंध कराची,
तो मैं देखना चाह रहा था कि सिंध के क्या हालात है। हसनैन, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ बाई रोड वहाँ से। आप यकीन माने मुझे सिंध के अवाम के ऊपर रहम आ रहा था। जब मैं सक्कर इंटर हुआ मैंने वो रोड के हालात देखे, उसके बाद जब कराची देखा। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, पाकिस्तानी कौम के सामने रखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह पार्लियामान के अंदर उस पर मैं बात करूँगा। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारी जब हुकूमत थी, इमरान सईद जब मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन के, तो डीसी के अकाउंट में हमारी हुकूमत के टाइम हमने पैसे जमा कराए थे ये सक्कर रोड के लिए। उन पैसों को जो लैंड एक्विजिशन के लिए थे वो पैसे कहाँ गए? ठीक है, देखें जी, इस तरह आप देख सकते हैं ये तमाम लोग मौजूद हैं। वज़ीर आला साहब, आप स्पेशल त्यारा क्यों नहीं यूज़ करते? नहीं, जब इसमें मैं सफ़र कर सकता हूँ तो फिर मैं वो क्यों यूज़ करूँ, और इसमें मैं खुश होता हूँ आवाम के दरमियान। अच्छा, हाँ जी। देखें जी, अवाम के दरमियान खुश होते हैं। और वज़ीर आला साहब जहाँ काम कर रहे हैं, दिखाने का मकसद ये था कि एक सूबे का वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जा रहे हैं और बिल्कुल आम लोगों के दरमियान मौजूद हैं। और एलीट क्लास के लिए तो ये सोचने वाली बात है, और तमाम सियासी लोगों के लिए, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए सोचने वाली बात है कि एक वज़ीर आला अगर इस तरह कर सकता है तो अब आपको क्या करना है। और हर इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी क्या है, हर इंसान क्या सोचता है, उसे क्या करना है। तो ये सूरत हाल है। और सिर्फ़ एक वज़ीर आला नहीं बल्कि पार्लियामानी लीडर, बल्कि दूसरे वज़ीर, तमाम लोग जो हैं वो इस टाइम जहाज़ पे सफ़र कर रहे हैं। हम कराची से जा रहे थे तो मैंने सोचा आपको दिखाया जाए, क्योंकि हम तमाम लोग कराची का एक सफ़र करके आए हैं। कराची जो एक जद्दोजहद हुई वो आपको दिखाई। तो अभी कराची से इस्लामाबाद वापसी है। और अभी आप ये जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं। ये सूरत हाल इस टाइम आगे अगर आप देखें, आगे तमाम आम लोग मौजूद हैं। खैर, अल्लाह सलामती के साथ ये सफ़र मुकम्मल करे और आइंदा के लिए भी हमें इसी तरह एक जज्बे के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत दे।